Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we are doing topic chemical properties of haloalkanes of chapter 10 haloalkane and haloarenes of class plus 2. And we know haloalkanes, they are also known as alkyl halides and they are having general formula RX. So now we have to study the chemical properties of haloalkanes or alkyl halide formula RX. The first type of reactions which the haloalkane will show, these are the nucleophilic substitution reactions. So as the name indicates, nucleophilic substitution reactions, they are made up of two words. One is nucleophilic and second is substitution. Nucleophilic word comes from the nucleophile. So what are nucleophile? In the plus one class you have studied nucleophile means nucleus loving species. So nucleo means nucleus and phile means loving. So these are the nucleus loving species. And we know nucleus has positive charge. It means they will have either negative charge or they have lone pair of electrons. So they are anions or neutral molecules having lone pair of electrons. For example, यदि एनाइन की बात करें जैसे Cl net T, Br net T, NO2 net T, OH net T, अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ही just like NH3, H2, etc. So next is substitution. Substitution means क्या होता है? Replacement. If one atom or group of atom in any organic compound is replaced by another atom or group of atom in such a way so that rest of the molecule remains same, then these are called substitution reactions. So nucleophilic substitution means क्या होगा? One nucleophile present in the parent organic compound will be replaced by another nucleophile. So nucleophilic substitution means क्या होगा? The nucleophile already present in parent organic compound is replaced by an outer nucleophile. कोई बाहर से न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले से न्यूक्लियोफाइल पड़ा है उसे रिप्लेस कर देगा. So these are nucleophilic substitution reactions. Now there are examples of nucleophilic substitution reactions in case of haloalkane. The first example is reaction with aqueous NaOH or aqueous KOH. Whenever any haloalkane react with aqueous NaOH or aqueous KOH, then what will happen? We know haloalkanes are represented by RH. When they will react with the NaOH aqueous, then what will happen? क्या होगा? इस haloalkane में से H नेगेटिव पार्ट बाहर निकलेगा न्यूक्लियोफाइल के रूप में और यहाँ पर OH नेगेटिव, O की ओर नेगेटिव है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ये आएगा और वहां H की वजह अटैच हो जाएगा, तो दे विल फॉर्म ROH plus NaH. So in this reaction, alkanol or alcohol is formed. So this is used for the formation of alcohol. ये रिएक्शन अल्कोहल की फॉर्मेशन में यूज होगी. अब एग्जांपल ले, हमने R अपनी तरफ से ले लिया CH3, H ले लिया Br, CH3Br प्लस NaOH aqueous, क्या होगा? CH3OH plus NaBr. So this is first reaction with aqueous NaOH. Now अब हम इस O की बजाय S करेंगे. Reaction with
NaSH। जब NaOH था उसका नाम था सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जब O की बजाय S आ गया है तो दिस इज सोडियम थायोहाइड्रोक्साइड। O की बजाय S जहां भी आएगा तो थायो वर्ड आ जाएगा, सो दिस इज सोडियम थायोहाइड्रोक्साइड। वी कैन आल्सो टेक KSH, एक्वस लेना है यहां भी। सेम वे से RH प्लस NaSH एक्वस, यहां से सेम वही H नेगेटिव बाहर निकलेगा, वहां OH पे नेगेटिव था, यहाँ SH पे, S पे नेगेटिव पार्ट है, तो यहां से H नेगेटिव बाहर निकलेगा और यहाँ SH नेगेटिव R के पास आ जाएगा। जैसे यहां से बाहर निकला ये SS नेगेटिव ये जाके यहाँ इस R के साथ जाके जुड़ जाएगा, क्या बनेगा RSH प्लस NaH। अब यहाँ यदि इस S की जगह O होता तो क्या होता ROH। RH को हम क्या बोलते हैं अल्कोहल। अब O की जगह S आ जाए तो थायो वर्ड एक्स्ट्रा आ जाएगा, सो दिस इज थायो अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब हमने CH3CH2Br प्लस NaSH, then it will form CH3CH2SH प्लस NaBr। उसका आईपीसी नेम था जैसे यहाँ मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर यदि इस S की जगह O होता, इस S की जगह, तो इसका नाम क्या था इथेनॉल, लेकिन O की जगह S आ गया तो थायो वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो दिस इज इथेन थायोल। और वैसे दूसरा नाम देखिए कॉमन नेम, तो उसका नाम था मिथाइल अल्कोहल यहाँ पे। अब यदि यहाँ नीचे इस रिएक्शन में S की जगह O होता तो CH3CH2OH क्या था इथाइल अल्कोहल, लेकिन O की जगह S आ गया तो थायो, तो दिस इज इथाइल थायो अल्कोहल। इस कंपाउंड का नाम क्या है यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज इथाइल थायो अल्कोहल। सो दिस रिएक्शन विद एक्वस NaSH, ये रिएक्शन कहाँ यूज होगी, दिस इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायो अल्कोहल। नेक्स्ट इज थर्ड इज reaction with sodium alkoxide. Sodium alkoxide, it is made up of three parts. One is sodium, second alco, alco comes from alkyl and that's oxide. अब अल्काइल को हम R से शो करते हैं, ऑक्साइड के लिए O और साथ में Na यानी कि RONA। इट मीन्स हम यहाँ RONA ऐड करेंगे या फिर R-ONA। अब होगा क्या, हमने लिया RH प्लस RONA, होगा क्या यहाँ पर इस ऑक्सीजन में नेगेटिव पार्ट है, तो यहाँ हेलोल्केन से H नेगेटिव बाहर निकलेगा और OR नेगेटिव का ये O इस R के साथ आके जुड़ जाएगा, तो क्या होगा ROR प्लस NaH। अब यहाँ आपकी चॉइस है, इवन हम R-ONA भी ले सकते हैं, तो एक R है एक R- है, इट मीन दीज टू अल्काइल्स आर डिफरेंट, तो यहाँ क्या बनेगा ROR- प्लस NaH। So whenever oxygen bridge is present between the two alkyl group or two aryl group and it is in attachment with the two carbon atom, then this compound is called ether. So in this case ether formation will take place. So this reaction is used for the formation of ether. ये reaction कहाँ यूज होगी, ethers की formation में, and this is a named reaction और इस named reaction का नाम क्या है, this is Williamson synthesis. This is called Williamson synthesis. अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, पहले फर्स्ट कैटेगरी का फिर सेकंड। पहले मैंने R पार्ट सपोज कीजिए मैंने CH3 ले लिया, तो CH3Br। अब ये भी R है तो अल्काइल दोनों सेम होने चाहिए, यदि ये मिथाइल है तो ये भी मिथाइल आना चाहिए, CH3ONA। होगा क्या, यहां से ये Na पॉजिटिव ये Br नेगेटिव मिल जाएगा, ये क्या बनाएगा NaBr, और ये O पार्ट इस C के साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या आएगा CH3OCH3।
its IUPAC name is methoxymethane and the common name is 2 times methyl है, that is dimethyl ether, क्योंकि ऑक्सीजन पार्ट स्मॉलर के साथ जोड़ना है। अब हम सेकेंड टाइप ले रहे हैं, जैसे R हमने ले लिया CH3 और R डैश ले लिया इथाइल CH3CH2 1 ने, वही सेम केस यहाँ ये O इस C के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा CH3O CH2CH3 प्लस NaBr। अब हमें IUPAC नेम देखना है तो ऑक्सीजन को स्मॉलर के साथ जोड़ना है, स्मॉलर अल्काइल, तो आप देखिएगा OCH3 इकट्ठा जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा मिथॉक्सी और 2 कार्बन की चेन है इथेन, सो IUPAC नेम इज मिथॉक्सी इथेन एंड द कॉमन नेम इज, आप देखिए इस ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल है दूसरी तरफ इथाइल, तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है इथाइल, तो दिस इज इथाइल मिथाइल ईथर। So in this case, ether's formation will take place, and this is the name reaction, and this name reaction is Williamson synthesis, very important reaction. Next is same way से जैसे हमने सोडियम अल्कोक्साइड किया था, अब हमारे पास आ गया रिएक्शन विद सोडियम अल्कोथायोक्साइड। अब सोडियम अल्कोक्साइड था तो RONA के साथ रिएक्शन, अब सोडियम अल्कोथायोक्साइड है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, O के बजाय S, क्योंकि थायोवर्ड है, RSNA के साथ रिएक्शन या फिर R-SNA के साथ रिएक्शन, RH प्लस RSNA, NaOH मिलेगा, RSR प्लस NaH, तो जहां भी हमें S दिखे इसका मतलब पहले वहां क्या था O, एज्यूम करके चलेंगे वहां O है, O का मतलब ये क्या था ईथर, लेकिन अब O के लिए S आ गया तो दिस इज थायोईथर, सो इट मींस इन दिस रिएक्शन थायोईथर्स आर फॉर्म, RH प्लस R-SNA, सेम वे से लेंगे RSR- प्लस NaH, सो thioether formation will take place. So in this reaction, formation of thioether will take place. अब एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CH3Br, मैं सेकेंड वाले का एग्जाम्पल ले रहा हूं CH3 CH2 SNA, तो ये क्या है हमारे पास सोडियम अल्को में अल्काइल कौन सा पार्ट है इथाइल इथो थायोक्साइड, होगा क्या ये Na और ये Br मिलके NaBr और ये S पार्ट इस C के साथ जुड़ जाएगा तो क्या होगा CH3 S CH2 CH3 प्लस NaBr। IUPAC नेम देखेंगे ये है इथाइल ये है मिथाइल, अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा इथाइल, तो दिस इज इथाइल मिथाइल, O होता तो क्या होता है ईथर, अब O की जगह S है तो थायोवर्ड आ जाएगा, दिस इज थायोईथर, सो दिस इज इथाइल मिथाइल थायोईथर। Next is reaction with alcoholic sodium cyanide और अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, तो अल्कोहलिक सोडियम साइनाइड या अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन, और इसी से मिलती जुलती एक रिएक्शन है रिएक्शन विद AgCN, दिस इज सिल्वर साइनाइड। अब क्या होगा, whenever haloalkane will react with NaCN alcoholic, then what will happen, क्या होगा यहां से H नेगेटिव बाहर जाएगा और यहाँ CN नेगेटिव का ये C पार्ट जुड़ जाएगा, RCN प्लस NaH, IUPAC नेम है इसका अल्केन नाइट्राइल एंड द कॉमन नेम इज अल्काइल साइनाइड, सो इन दिस केस अल्काइल साइनाइड विल बी फॉर्म। अब हमने सिमिलर रिएक्शन की AgCN के साथ RH प्लस AgCN, देन वी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होना क्या चाहिए RCN,
plus AgH. But in this case, cyanide will not be formed. Then what will be the product? Cyanide नहीं बनेगा तो क्या होगा? देखिएगा, यहां CN ना आके यहां क्या आएगा हमारे पास NC. तो NC क्या है? आइसोनाइट्राइल. तो दिस इज अल्केन आइसोनाइट्राइल इज फॉर्म. जैसे ही कहेंगे अल्काइल आइसोसाइनाइड इज फॉर्म. अब एग्जांपल से लें, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक जैसे कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं, सोडियम साइनाइड, सिल्वर साइनाइड, बट सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के केस में साइनाइड इज द मेजर प्रोडक्ट और सिल्वर साइनाइड के केस में आइसोसाइनाइड इज द मेजर प्रोडक्ट. अब एग्जांपल लेते हैं. सपोज कीजिए हमने आर दिया CH3CH2Br प्लस NaCN अल्कोहलिक, तो क्या होगा? CH3CH2CN प्लस NaBr. और सेम कंपाउंड यदि हम लेते हैं CH3CH2Br प्लस AgCN, तब क्या बनेगा? CH3CH2NC प्लस AgBr, यानी कि इथाइल आइसोसाइनाइड इज द प्रोडक्ट. सो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि व्हाई हेलो अल्केन्स ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक NaCN or alcoholic KCN, they will form alkyl cyanide as major product, while on reaction with AgCN, they will form alkyl isocyanide as major product. Why? What is the reason behind this? Next. Now, अब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि हेलो अल्केन्स जिसमें सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड अल्कोहलिक के साथ रिएक्शन करते हैं, then they form alkyl cyanide as major product. And on reaction with AgCN alcoholic, they will form isocyanide as major product. Now, what is the reason? Firstly, we case it is the example of NaCN or KCN alcoholic. Suppose we are having NaCN alcoholic or KCN alcoholic. Then NaCN or KCN, these two are the anion compounds. These two are the anion compounds. And NaCN alcoholic or KCN alcoholic dissociate to form two type of ions, Na positive and Cn negative ion. Then Cn negative ion, this is a ambident nucleophile. Ambident nucleophile क्या है? This is just similar to the ambidentate ligand studied in chapter 9 coordination compound. So ambident nucleophile, it means Cn negative is having the two donor atom, one is carbon, second is nitrogen, and it can attach with carbon as well as nitrogen. तो Cn active ambident nucleophile है, इसमें दो डोनर एटम है, कार्बन नाइट्रोजन. ये चाहे तो कार्बन से जुड़े चाहे नाइट्रोजन से जुड़े, बट whenever it will join with the carbon atom of cyanide, Cn active कार्बन से जुड़ेगा, then in that case CC bond is formed in product. And if it will join with the nitrogen atom, then it will form Cn bond will be the product. Cn bond will be formed in the product. Now we will compare the stability of CC bond and Cn bond. Then it is found that CC bond is more stable than Cn bond. तो CC bond क्या है? Cn bond के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल है, and therefore alkyl cyanide will be the major product. क्योंकि जो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब उसको बनने वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा. Now in case of AgCN, it does not dissociate to form Ag positive and Cn active ions. So in this case, attachment will take place only through nitrogen atom. Attachment कैसे होगी? So in this case, alkyl isocyanide will be the product. So this is the reason. So this is the reason that why haloalkane on reaction with alcoholic NaCN or alcoholic KCN will form alkyl cyanide as major product, and on reaction with AgCN they will form isocyanide as the major product. Next question.
Next reaction is reaction with NaNO2, that is sodium nitrite, or KNO2, potassium nitrite. And similar reaction with AgNO2, silver nitrite. अब क्या होगा? Whenever haloalkane react with NaNO2, sodium nitrite or potassium nitrite, then in this case alkyl nitrite will be the major product. तो यहां क्या बनेगा? अल्काइल नाइट्राइट, ओ से अटैचमेंट होगी नाइट्राइट. एग्जाम्पल है, जैसे हमने ले लिया CH3CH2Br प्लस NaNO2, क्या होगा? CH3CH2O and double bond O plus NaBr. This is ethyl nitrite, TE. और जिस समय AgNO2 से रिएक्शन की है तो उस समय ये N पार्ट अटैच होगा, then it will form RNO2 plus AgBr, AgH, that is nitroalkane. एग्जाम्पल ले ले वही CH3CH2Br प्लस AgNO2. देखने में ये कंपाउंड NaNO2 जैसा लग रहा है, लेकिन यहां पर N के द्वारा अटैचमेंट है CH3CH2NO2 प्लस AgBr, that is nitroethane. Now similar question, कि why haloalkanes on reaction with NaNO2 or KNO2 they will form alkyl nitrite as the major product, while on reaction with AgNO2 they will form nitroalkane as the major product. तो आंसर भी पहले जैसा ही होगा. We will say that NaNO2 or KNO2, these two are the ionic compound. They dissociate to form two ions, Na positive, NO2 negative. NO2 negative is an ambident nucleophile. It contains two donor atoms, nitrogen as well as oxygen. Whenever it will attach with nitrogen, then CN bond is formed. Whenever it will attach with oxygen, then CO bond is formed. But CO bond is more stable than CN bond. So that's why in the first case, alkyl nitrite is the major product. But whenever we take AgNO2, then it does not dissociate to form Ag positive and NO2 negative ion. So in this case, attachment will take place only through nitrogen atom. And that's why nitroalkane will be the major product. So these are the second reason. Next, nucleophilic substitution reaction of haloalkane. Next is reaction with ammonia. Whenever any haloalkane react with ammonia, then what will happen? RH, it will firstly react with the NH3. तो क्या होगा? यहां अमोनिया में से एक हाइड्रोजन और यहां से H निकलेगा, HH बाहर निकल जाएगा. HH मैंने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा? RNH2. This is primary amine. Whenever haloalkane RH is in excess, तो यदि RH excess में है तब क्या है? ये फर्दर RNH2 से रिएक्शन करेगा प्राइमरी अमाइन के साथ, और फिर यहां से एक H और ये H निकलेगा, HH बाहर, और ये R पार्ट इस R से जुड़ जाएगा, ये फिर बनाएगा R2NH. दिस इज सेकेंडरी अमाइन. अब सेकेंडरी अमाइन है ये, फिर RH से रिएक्शन करेगा. अब ये H और ये H दोनों निकल जाएंगे, HH माइनस, ये बनेगा R3N. दिस इज टर्शियरी अमाइन. अब R3N है, इट विल फर्दर रिएक्ट विद द RH. तो ये R पार्ट इस R3 से जुड़ जाएगा, R4. नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करने से पॉजिटिव चार्ज N पॉजिटिव, और उसे गेन कौन करेगा? H नेगेटिव. R4 N पॉजिटिव H नेगेटिव. दिस इज क्वाटरनरी ammonium salt. So in this reaction,
primary amine, secondary amine, tertiary amine, and quaternary ammonium salt are formed. So this section used for the formation of amines. और amines होते क्या हैं? These are the derivatives of ammonia. So amines बनाने में यूज हुआ है. And this is a named reaction. और इस named reaction का नाम क्या है? This is Hofmann ammonolysis reaction. This is Hofmann ammonolysis reaction. अब एग्जांपल लें हम यहाँ. सपोज कीजिए R हमने ले लिया CH3CH2Br प्लस NH3. शुरुआत में HBr माइनस हुआ, CH3CH2NH2 इथाइलामाइन. फिर हमने रिएक्शन की, CH3CH2Br के साथ HBr माइनस. तो क्या बनेगा? ऐसे ऐसे लेते हैं, C2H5 twice NH. दिस इज कैंटियमाइन. ये फर्दर रिएक्शन करेगा C2H5Br के साथ माइनस HBr. यह बन जाएगा C2H5 thrice एंड दिस इज टर्शियमाइन या ट्राइथाइलामाइन. ये फर्दर रिएक्शन करेगा C2H5Br के साथ. अब ये बनेगा C2H5 एन पॉजिटिव Br नेगेटिव. अब यदि हम C2H5 की जगह H कर दें तो यानी कि C2H5 4 टाइम्स है, यानी कि NH4Br. NH4 क्या होता है? अमोनियम. सो दिस इज अमोनियम ब्रोमाइड. आप 4 बार इथाइल लगा, दैट इज टेट्रा इथाइल. सो दिस इज टेट्रा इथाइल ammonium bromide. This is quadratic ammonium salt. So in this reaction, primary amine, secondary amine, tertiary amine, and quadratic ammonium salt are formed, and this reaction is Hofmann ammonolysis. Next reaction. Next reaction is reaction with sodium alkynide. This reaction used for the formation of higher alkynes. And this reaction is also used in the conversion कि हमें किसी हेलोल्केन या अल्काइल हैलाइड से कोई अल्काइन बनाना है, वहां इस रिएक्शन को यूज करेंगे. अब सोडियम अल्काइनाइड क्या चीज है? व्हाट इज सोडियम अल्काइनाइड? सपोज कीजिए हमारे पास इथाइन है. इथाइन का फार्मूला क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH. अब यदि हम इथाइन में से कोई भी एक टर्मिनल हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे, सपोज कीजिए हम इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं, तो इस बचे हुए पार्ट को बोलते हैं इथाइन था, तो ये क्या होगा? इथाइनाइड. और यहां हम Na लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम इथाइनाइड. अब कॉमन नेम देखें, इथाइन का कॉमन नेम क्या है? एसिटाइलिन. तो एसिटाइलिन से क्या बन जाएगा? एसिटाइलाइड. और सोडियम आ गया, तो दिस इज सोडियम एसिटाइलाइड. इस तरह से हम कोई भी सोडियम अल्काइनाइड बना सकते हैं. अब हमें क्या करना है अल्काइंस बनाने के लिए? वी विल टेक गिवन हेलोल्केन, रिएक्शन करेंगे हम यहाँ. जैसे हम सपोज करो CH ट्रिपल बॉन्ड C Na के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो वही सेम केस यहाँ से H नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव मिलेगा, और ये C पार्ट जाके इस R से जुड़ जाएगा, तो ये RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaH. एग्जाम्पल लें, सपोज करो हमें आ गया इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br. हम रिएक्शन कर रहे हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C Na के साथ, तो होगा क्या? ये C पार्ट जाके इस C से जुड़ जाएगा, CH3 CH2, जहां से Br निकला है वहीं पर जाके C जुड़ेगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaBr. दिस इज ब्यूटाइन. ये क्या था हमारे पास? इथाइल ब्रोमाइड. तो ये रिएक्शन कन्वर्जन में भी यूज होती है. जैसे आपको आ गया कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू ब्यूटाइन, तो हमें देखेंगे कि हमारे पास गिवन हेलोल्केन में स्टार्टिंग में कितने कार्बन हैं. इथाइल ब्रोमाइड मींस टोटल 2 कार्बन एटम, स्टार्टिंग में 2 है, और हमें आया पेपर में क्या है? ब्यूटाइन बनाना. ब्यूटाइन मींस टोटल 4.
तो हमें देखना है बैलेंस कितने कार्बन है 2, तो हमें बैलेंस 2 कार्बन वाला सोडियम अल्काइनाइड लेना है। तो 2 कार्बन वाला अल्काइन कौन सा है? इथाइन, तो यानी कि हमें सोडियम इथाइनाइड से रिएक्शन करनी है। सपोज करो हमें आ जाता है इथाइल ब्रोमाइड से पेंटाइन, तो इथाइल ब्रोमाइड मींस 2 कार्बन स्टार्टिंग में है हमारे पास और हमें बनाना है पेंटाइन। पेंटाइन मींस टोटल हमें क्या चाहिए हमारे पास 5 कार्बन। इट मींस हमें देखेंगे स्टार्टिंग में 2 पड़े हैं और हमें प्रोडक्ट में 5 चाहिए, तो बैलेंस क्या हो गया 3। तो यानी कि हम 3 कार्बन वाला सोडियम अल्काइनाइड लेंगे। तो सबसे पहले 3 कार्बन वाला प्रोपाइन कौन सा है हमारे पास? 3 कार्बन का अल्काइन कौन सा है? प्रोपाइन। तो हम लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और फिर वहां पर Na लगा के चलते, तो वो सोडियम प्रोपाइनाइड से रिएक्शन करेंगे और उस केस में क्या बन जाएगा? पेंटाइन। So in this way we can form any higher alkyne by using the alkyl halide or haloalkane. So these all are the nucleophilic substitution reactions in case of haloalkanes. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Talra. Thanks a lot.